اے میرے خدا مجھ کو ایسا ملے میں خانہ، اے میرے خدا مجھ کو ایسا ملے میں خانہ، ساقی ہو میرے آقا، ساقی ہو میرے آقا، کوثر کا ہو پیمانہ، ساقی ہو میرے آقا، کوثر کا ہو پیمانہ، اے میرے خدا مجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین۔ ابھی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مینا کے ایک حصے میں، جمرات کے پاس۔ یہ جو پیچھے آپ لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد بیعہ یا مسجد بیعت، اور مسجد عقبہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ مسجد ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد کی تاریخ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر ہجرت کی تھی، تو اس سفر ہجرت میں یہ مسجد بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان فرمایا تو وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے خاندان والے بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ دو مضبوط سہارے آپ کے موجود تھے، گھر میں آپ کی شریک حیات تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر کے باہر آپ کے چچا تھے ابو طالب۔ جب تک آپ کے چچا حیات تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی آپ تک ہاتھ اٹھانے کی۔ نبوت کے 10ویں سال چند دنوں کے وقفے سے یہ دونوں مضبوط سہارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے۔ اب جو قریش مکہ نے آپ کو ستانا شروع کیا، اب جب کفار مکہ نے آپ کو ستانا شروع کیا تو انتہا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، تو آپ سب سے پہلے طائف تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف دکھ درد بھرا سفر رہا۔ خود آپ نے فرمایا کہ جو تکلیفیں آپ نے طائف میں برداشت کی اور کہیں پر آپ نے اتنی تکلیف برداشت نہیں کی۔ طائف سے واپسی پر بڑی مشکل سے مطعم بن عدی نے آپ کی پناہ کا اعلان کیا اور آپ کو لے کر دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آنے والے حجاج کرام سے ملاقات کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے۔ اس دور میں بھی حج ہوتے تھے، اس دور میں جو حج ہوتے تھے وہ سنت ابراہیمی کا حج ہوتا تھا، اور ہم لوگ جو حج کرتے ہیں یہ سنت محمدی کا حج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر حجاج کے خیموں میں حجاج سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ پیچھے پیچھے ابو لہب ہوتا، وہ لوگوں کو بہکاتا کہ ان کی بات نہ سننا، یہ ہمارے خاندان کے، ہماری قوم کے ہے، لیکن انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگوں کو ورگلاتا کہ ان کی بات مت سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ نبوت کے 11ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 نوجوان ملے جو یثرب کے تھے۔ مدینہ اس وقت یثرب کہلایا کرتا تھا۔ یہ 6 نوجوان کون تھے؟ 3 قبیلہ اوس کے تھے، 3 قبیلہ خزرج کے تھے۔ ابو الحسن بن تیہام، عبداللہ ابن رواحہ، عبیدہ ابن صامت، سعد ابن ربی، اسد ابن زرارہ اور نعمان ابن حارثہ۔ یہ 6 نوجوان نبوت کے 11ویں سال اس جگہ پر جہاں پر بڑا شیطان ہے، بڑا جمرہ ہے، وہاں پر اس کے آس پاس کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میری بات سنو گے؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی ہوں۔ کہا جی سنائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ سے لے کر تو آخری کے 2 رکوع تک ان کو تلاوت کر کے سنایا۔ اب وہ نوجوان عرب تھے، عربی جانتے تھے، تو آپس میں بات چیت کرنے لگے
کہ یہ कलाम इंसानी तो लगता नहीं है, किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम तो लगता नहीं है। और ये यहूदी हमको डराते रहते हैं कि आखिरी नबी आने वाले हैं, सब उनके हाथों पर ईमान कबूल करेंगे, तो चलो यहूदियों से पहले हम इनका कलमा पढ़ लेते हैं और हम इनके साथी बन जाते हैं। तो सबसे पहले इन छह नौजवानों की किस्मत जागी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल आएंगे। अगले साल 12 लोग आए, 5 इनमें से और 7 नए। उन्होंने कहा कि हम अगले साल आएंगे। तो उनके साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एज अ टीचर, उस्ताद बनाकर उनके साथ में रवाना किया, ताकि वो वहाँ मदीना पहुंचकर उनको दीन सिखाएं, दीन पढ़ाएं। उसके अगले साल जब लोग आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था, उस वजह से जब उसके अगले साल लोग आए तो यहाँ पर 72 लोग आए। उसके अगले साल 72 लोग आए, जिसमें 70 मर्द थे और 2 औरतें थी। 70 मर्द थे, 2 औरतें थी, उम्मे मनी और उम्मे अमारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त तय हुआ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में कहाँ पर मुलाकात करनी है। तो ये जो जगह है, ये मस्जिद बैत जहाँ पर बनी हुई है, ये जगह पहले पहाड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से। तो हुज्जाज किराम की सहूलत के लिए यहाँ से बड़े बड़े पहाड़ काट कर, ताकि हुज्जाज किराम के लिए सहूलत हो और जगह वसी हो जाए। तो ये जगह बिल्कुल, जब पहाड़ की कटिंग हुई, पहाड़ काट कर यहाँ से हटाए गए, तो ये जगह बिल्कुल उभर कर सामने आ गई। पहले मस्जिद की पुरानी इमारत थी जो मिट्टी से बनी हुई थी, अब जो है मस्जिद की इमारत को रिनोवेट कर दिया गया है। मस्जिद की इमारत को जो है तामीर व तौसी करके और खूबसूरत उसे बना दिया गया है। तो ये वही जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। अब उनके दरमियान क्या बातचीत हुई, तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों से कहा कि यस्रिब वालों, इनको ले जाने से पहले अच्छी तरह से सोच लो, इनको अगर लेकर जाओगे तो सारा जहान तुम्हारे खिलाफ उठकर खड़ा हो जाएगा। तो एक शख्स खड़े हुए, उनका नाम है बरा इब्न मारूर। तो बरा इब्न मारूर खड़े हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के हबीब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी चचा की बात का जवाब दे दूं, इनकी बात का जवाब भी दे दूंगा और इनकी शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं करूंगा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। तो बरा बिन मारूर कहते हैं कि अब्बास, चूड़ियां हमने भी नहीं पहन के रखी, जब अरब हमारे खिलाफ आकर खड़ा होगा तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मर्दों से पाला पड़ा है, औरतों से पाला नहीं पड़ा। हमारा नगमा भी तलवारों की झनकार है, तो हम बुज़दिल कौम नहीं है। जब लोग हमारे खिलाफ आकर खड़े होंगे तो हम बहादुरी से उनका जवाब देंगे। बरा बिन मारूर ने कहा कि अल्लाह के हबीब, आपकी शर्तें क्या हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शर्तें बताई। कहा, मेरी और मेरे रब की मान कर चलोगे, चाहे तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे। मेरी हिफाजत करोगे जिस तरह से अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करते हो। मेरे कहने पर माल खर्च करोगे, तंगी में भी, फराखी में भी, यानी कि तुम्हारे कारोबार में सीजन चल रहा हो तब भी और सीजन नहीं हो तब भी। भलाई को फैलाओगे, बुराई को मिटाओगे। मेरे दीन को लेकर सारी दुनिया में जाकर जिहाद करोगे। और मेरी मानने में, मेरे रब की मानने में, मेरी और मेरे रब की मानने में अगर दिक्कत आए, परेशानी आए, लान तान आए, तो उसे बर्दाश्त करोगे। कहा, हाथ बढ़ाइए। तो एक शख्स उठकर खड़े हुए, इनका नाम है अब्बास इब्न मिर्दास। ये उठकर खड़े हुए और कहते हैं, ठहरो, और कहते हैं कि देखो, ये हस्ती अपनी कौम में है, इनकी कौम इनके साथ जो सुलूक करे ये इनका मामला है, लेकिन हम पराई कौम हैं, इनको लेकर जा रहे हैं तो याद रखना, तुम्हारी बीवियां बेवा होंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारे घर लुटेंगे। अगर इन तमाम चीज़ों के लिए तुम तैयार हो तो इनको लेकर चलो, और अगर इन तमाम चीज़ों से गुजरने का हौसला ना हो तो इन्हें आज ही छोड़ दो। बाद में छोड़ने से बेहतर है कि आज ही छोड़ दो। तो अबुल हसन बिन तैहाम खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के नबी, ये अब्बास हमें जिस चीज़ से डरा रहा है कि हमारी बीवियां बेवा होंगी, हमारे बच्चे यतीम होंगे, हमारे घर लुटेंगे, अगर हम इन तमाम मुश्किलात से गुजर कर भी हम साबित कदम रहे, हम आपके साथ खड़े रहे, तो हमें क्या मिलेगा? कहा, जन्नत मिलेगी। कहा, फिर कोई मसला ही कोई नहीं। तो सारे लोगों ने बैत की, सारे मर्दों ने बैत की। औरतों ने जब बैत के लिए हाथ बढ़ाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। कहा, तुम्हारी जुबान की बैत ही काफी है। उसके बाद अबुल हसन बिन तैहाम खड़े हुए और एक जबरदस्त पॉइंटेड सवाल पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहा, अल्लाह के नबी, कल अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको फतह दे और अरब आपके ताबे हो जाए, तो ये बात आज क्लियर हो जानी चाहिए कि आप हमें छोड़कर वापस मक्के तो नहीं आएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है,
मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उन लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। कहा जब अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं आ जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर जब मक्का आए तो सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर आप लंबी दुआ कर रहे थे। तो मदीने वाले आपस में बातचीत करने लगे कि लगता है घर की मोहब्बत दिल में उजागर हो गई, जज्बात घर के लिए शायद उभर गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के लोग बदगुमान हो गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते करते फौरन हाथ नीचे किए और कहा कि या माशरल अंसार, ऐ अंसार मदीना, ऐ मदीना के लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैंने तुम्हें ज़बान दी है कि मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। तो वो सारे लोग अल्लाह के हबीब से कहने लगे कि अल्लाह के हबीब, ये बदगुमानी ईमान की कमी की वजह से नहीं आई, ये बदगुमानी मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से आई है। तो अल्लाह के हबीब कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे इस उज़्र को कबूल करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर उन लोगों ने बैत की थी। मस्जिद की दीवार में ये पत्थर की तख्तियाँ लगी हुई हैं जिसके ऊपर मस्जिद की तामीर के बारे में लिखा हुआ है। इस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कामिल दुरूद व सलाम नाजिल हो आकाए नामदार हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस मस्जिद की तामीर का फरमान हमारे सरदार व आका जिनकी इताअत व ताबेदारी जुमला मखलूक़ात पर फ़र्ज़ है, जो कि अल्लाह से मदद मांगने वाले हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन अबू जाफ़र अल मंसूर ने जारी किया। अल्लाह ताला आपके ऐवान मददगारान को इज़्ज़त बख्शे और आपके इक़दार में बेशुमार इजाफ़ा करे। तो ये इस तख्ती पर लिखा हुआ है। मस्जिद अबू जाफ़र अल मंसूर ने 144 हिजरी में तामीर करवाई थी। 1250 हिजरी में सुल्तान अब्दुल मजीद ख़ान उस्मानी खलीफा कई बार तज़ीन व आराइश की गई। ये जमरात की बिल्डिंग है। एक तरफ से तो मस्जिद खैफ है, मस्जिद खैफ इस बिल्डिंग के उस तरफ है मस्जिद खैफ, और हम लोग मस्जिद खैफ और ये जमरात की बिल्डिंग और उसके इस तरफ यानी शीशा की तरफ हम लोग खड़े हुए हैं। ये जमरात की बिल्डिंग है और ये है वो मस्जिद बैत, जहाँ पर उन लोगों ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुई थी। और इस तरफ का जो इलाका है ये है शीशा का इलाका।